Okay, now students, let's discuss some small questions that comes under Consumer Protection Act 1986. It can give you the total knowledge about the Consumer Protection Act 1986 students. So the question is, who can file a complaint under the Consumer Protection Act 1986? Right students, complaint कौन फाइल कर सकता है? Any consumer, any registered consumer association, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. यस स्टूडेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी कंज्यूमर बन के कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल कर सकती है. इन केस सपोज करिए स्टूडेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक टेंडर निकाला है ब्रिज बनवाने का, रोड बनवाने के, डैम्स बनवाने के, और उसमें अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ गई है, वहाँ पर सीमेंट अच्छा नहीं लगा हुआ है, या ब्रिज पे कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, डैम्स पे कोई मिसहैपनिंग हो जाती है ड्यू टू द पुअर क्वालिटी ऑफ द कंस्ट्रक्शन मटेरियल इज यूज्ड, तो उसके बिहाफ पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट कंज्यूमर बन के तो सामने वाली पार्टी के खिलाफ भी केस फाइल कर सकती है अगेंस्ट दैट कॉन्ट्रैक्टर, यू कैन से दैट स्टूडेंट्स. और वन और मोर कंज्यूमर ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमरियस कंज्यूमर हैविंग द सेम इंटरेस्ट. मतलब बहुत सारे कंज्यूमर की एक ही कंप्लेंट है, तो एक कंज्यूमर एक एप्लीकेशन लिखेगा या एक कंज्यूमर एक कोर्ट में, कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल करेगा, और बाकी सारे लोग जिनको भी वही सेम प्रॉब्लम है, बाकी सारे कंज्यूमर्स जिनको भी वही सेम प्रॉब्लम है, वो अपना एड्रेस, नेम और नीचे साइन कर देंगे. दैट इज गोइंग टू बी द वन प्ली, जिसको हम बोलते हैं वन केस, वन प्ली, वन फाइल on behalf of numerous consumer, one complaint on behalf of numerous consumer. So students, who can file a complaint? Any consumer, any registered consumer association, the central government or any state government, one or more consumers on behalf of numerous consumer having the same interest. Right students, I hope this concept is very much clear to you. The second one is, under what circumstances complaint can be filed? Right students, complaint can be filed against fraudulent practice of traders and manufacturer. First, if goods are defective. Second, if there is any deficiency in the service hired. That is supposed to be the third. As I told you earlier students, goods में हमेशा defect होते हैं और services में हमेशा deficiency होती है. Right students, I hope this is very much clear to you. So, against whom the complaints can be filed? The complaint can be filed against the seller, manufacturer or dealer of goods which are defective. Defective means any fault or shortcoming in quality, quantity or purity of goods. Right? Now come to the next point. The provider of services, if they are deficient in any manner. Deficiency किसमें होती है student? Deficiency means any imperfection, shortcoming in the quality, nature and manner of performance of services. Right students, I hope the concept of goods are defective and deficiency in services are very much clear to you. Defective means any fault or shortcoming in quality, quantity or purity of goods. Goods में ये होता है बेटा. और services में deficiency means any imperfection, shortcoming in the quality, nature and manner of performance of services. Right students, I hope this concept is very much clear to you. Now come to the next concept. This is supposed to be the very much important concept, students. What are the silent features, relief or remedies available to a consumer under Consumer Protection Act 1986? Right students, there are several points बेटा. इसमें काफी पॉइंट्स है, लेकिन बेटा कुछ पॉइंट्स ये कंज्यूमर के लिए फेवर करते हैं और कुछ पॉइंट्स ये बिजनेसमैन के लिए फेवर करते हैं. राइट स्टूडेंट्स, द वेरी फर्स्ट इज रिमूवल ऑफ डिफेक्ट्स इन गुड्स और डेफिशिएंसी इन सर्विसेज. राइट, अगर कंज्यूमर कोर्ट में जाता है तो कंज्यूमर कोर्ट में जो जज फैसला देगा, अपना जजमेंट देगा, वो कंज्यूमर के फेवर में होगा. तो कंज्यूमर के फेवर में वो क्या क्या बातें हो सकती हैं जो जजमेंट आएगा. द वेरी फर्स्ट इज रिमूवल ऑफ डिफेक्ट इन गुड्स और डेफिशिएंसी इन सर्विसेज. सेकेंड, रिप्लेसमेंट ऑफ द गुड्स, गुड्स बदल दिए जाएंगे स्टूडेंट्स. थर्ड, रिफंड ऑफ द प्राइस पेड, पूरा पैसा वापस मिलेगा. फोर्थ, to pay compensation for any loss or injury. Right students, to pay compensation for any loss or injury. Right students, these are the 4 points जो कि किसके उसमें होंगे बेटा, बिहाफ में होंगे, किसके फेवर में आएंगे, कंज्यूमर के फेवर में. पहला क्या है, रिमूवल ऑफ गुड्स और डेफिशिएंसी इन सर्विसेज, डिफेक्ट्स गुड्स से दूर किए जाएंगे, डेफिशिएंसी दूर की जाएगी. सेकेंड इज रिप्लेसमेंट ऑफ द गुड्स.
थर्ड, रिफंड ऑफ द प्राइस पेड. फोर्थ, टू पे कंपनसेशन फॉर एनी लॉस और इंजरी. राइट स्टूडेंट्स, दीज आर द 4 पॉइंट्स जो कि किसके फेवर में होंगे, जो कंज्यूमर के फेवर में आएंगे. अब जो जजमेंट देगा वो बिजनेसमैन के लिए भी तो कुछ कहेगा बेटा. वो बिजनेसमैन के लिए क्या कहेगा? बिजनेसमैन के लिए कहेगा बेटा, फिफ्थ पॉइंट, टू डिसकंटिन्यू द अनफेयर और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस. वो जो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहा है कंज्यूमर के साथ, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा है, स्टॉप इट. सिक्स, स्टॉपिंग द सेल ऑफ हजार्ड गुड्स. जो भी वो गुड्स बेच रहा है उसे स्टॉप करने के लिए ऑर्डर आ जाएगा. रिमूवल ऑफ डेफिशिएंसी इन सर्विसेज. विड्रॉल ऑफ हजार्ड गुड्स फ्रॉम द मार्केट. मार्केट से वो गुड्स उठा लिए जाए, ये बेटा फैसला आएगा. टू पे एडिक्वेट कॉस्ट टू द अप्रोप्रिएट पार्टी. अप्रोप्रिएट पार्टी का मतलब होता है बेटा कि देर आर मिडिल मैन ऑल्सो इन बिजनेस चेन. आपको पता है स्टूडेंट्स, यू नो इट वेरी वेल दैट मैन्युफैक्चरर सेल गुड्स टू होलसेलर, होलसेलर गुड्स टू रिटेलर, एंड रिटेलर सेल गुड्स टू अल्टीमेट कंज्यूमर्स. राइट स्टूडेंट्स, सो इफ देर इज लॉस ऑफ अ कंज्यूमर, तो बेटा वो लॉस होलसेलर का या रिटेलर का भी तो नहीं होना चाहिए. अगर मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैन्युफैक्चरर के गुड्स में कोई डिफेक्ट है तो व्हाई द होलसेलर और व्हाई द रिटेलर हैज टू बियर द लॉस. राइट, तो यहां पर स्टूडेंट इसका मतलब ये है टू पे एडिक्वेट कॉस्ट टू अप्रोप्रिएट पार्टी का मतलब होता है इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मैन्युफैक्चरर टू पे एडिक्वेट कॉस्ट टू होलसेलर और रिटेलर ऑल्सो. राइट स्टूडेंट्स, आई होप ऑल द 9 पॉइंट्स आर वेरी मच क्लियर टू यू. स्टूडेंट्स, जो स्टार्टिंग के जो 4 पॉइंट्स थे, राइट स्टूडेंट्स, वो किसके फेवर में थे? कंज्यूमर के फेवर में थे. और जो नेक्स्ट बेटा 5 पॉइंट्स थे वो किसके फेवर में है बेटा? वो फेवर में है आपके बिजनेसमैन के. वो बिजनेसमैन के लिए बोले जाएंगे कि ये आप बंद करिए, बिजनेसमैन के फेवर में ये चीजें आएंगी. राइट स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. द नेक्स्ट टॉपिक इज रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड NGOs. राइट स्टूडेंट्स, what are the role of consumer organization and NGOs? Students, in India there are more than 500 consumer organizations which are working to protect and promote the interest of consumer. But students, सारे आपके कोर्स में नहीं हैं. Right, these are the six consumer organization which is going to be very much important and it is given in NCERT also. So learn these 6 consumer organizations or NGO. Right, आपको इनके नाम याद करने हैं. राइट, द वेरी फर्स्ट इज कॉमन कॉज न्यू दिल्ली. सेकेंड, कंज्यूमर सोसाइटी ऑफ इंडिया मुंबई. थर्ड, कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर अहमदाबाद. फोर्थ, कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी जयपुर. फिफ्थ, कंज्यूमर गाइडेंस काउंसिल दिल्ली. सिक्स्थ, मुंबई ग्राहक पंचायत मुंबई. दीज आर द 6th very much important non-government organization has been set up to protect and promote the consumer interest. इनका स्टूडेंट्स मेन काम क्या होता है? इनका मेन काम होता है वेलफेयर ऑफ द पर्सन. राइट स्टूडेंट्स, और कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना. और बेटा ऐसे कई सारे कंज्यूमर हैं जो कि अपने बिहाफ पे केस नहीं लड़ सकते हैं, दे आर नॉट अवेयर. तो दीज ऑर्गेनाइजेशंस, जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो कंज्यूमर के बिहाफ पर भी कंज्यूमर कोर्ट में केस लड़ सकती है. राइट स्टूडेंट्स, आई होप these are very much clear. Now come to the important functions. बेटा इनके क्या important functions हैं? There are 6 important functions बेटा. Right students, there are 8 important functions बेटा. 8 important functions है. The very first is बेटा इनके अपने brochures journals होते हैं. ब्रोचर जर्नल्स में हर एक मेंबर के नेम, एड्रेस, कंज्यूमर राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टेलीफोन नंबर्स, ये सारे लिखे रहते हैं. राइट स्टूडेंट्स, इट्स अ काइंड ऑफ अ ब्रोचर्स एंड जर्नल्स कि इसके मेंबर कौन से हैं, फाउंडर मेंबर कौन कौन है, हाउ मेनी पर्सन्स आर वर्किंग इन दीज NGOs, व्हाट आर द राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन दीज NGOs एंड व्हाट आर द राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर. कॉन्टैक्ट नंबर्स होते हैं. सेकेंड, स्प्रेडिंग कंज्यूमर अवेयरनेस. सेकेंड फंक्शन ऑफ दिस इज कंज्यूमर अवेयरनेस को फैलाना. थर्ड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फंक्शन स्टूडेंट. थर्ड क्या है? कलेक्टिंग डेटा ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड टेस्टिंग दैम. इनके पास ये पावर होती है स्टूडेंट्स, किसी की भी रिटन कंप्लेंट पर, किसी भी कंज्यूमर की रिटन कंप्लेंट पर ये किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट्स को टेस्ट करने के लिए लेबोरेटरी में भेज सकते हैं. अब ये लेबोरेटरी में टेस्ट करने के लिए कहाँ भेजेंगे? कंज्यूमर कोर्ट में. कंज्यूमर कोर्ट हैव गॉट देयर ओन टेस्टिंग लेबोरेटरीज. ये डेटा कलेक्ट करेंगे किसी की भी रिटन कंप्लेंट पर और प्रोडक्ट्स को टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरी में भेज देंगे, जो कि कंज्यूमर कोर्ट में होती है. और हर शहर में कंज्यूमर कोर्ट होता है. फोर्थ स्टूडेंट्स, अरेंजिंग सेमिनार्स
कॉन्फ्रेंसेस फॉर द पर्पज ऑफ फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम ऑफ कंज्यूमर्स, ये छोटे छोटे सेमिनार्स को अरेंज करते हैं जगहों पर, ठीक है, जिससे कि कंज्यूमर अवेयर हो अबाउट देयर राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड 3 टायर जुडिशियल मशीनरी दैट कम्स अंडर स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन एंड डिस्ट्रिक्ट फोरम. फाइलिंग सूट्स और कंप्लेंट ऑन बिहाफ ऑफ द कंज्यूमर. फाइलिंग सूट्स का मतलब होता है केस लड़ना, राइट स्टूडेंट्स, ऑन बिहाफ ऑफ द कंज्यूमर. ऐसे बहुत सारे कंज्यूमर हैं जो कि केस नहीं लड़ सकते, तो उनके बिहाफ पर दीज एनजीओज फाइलिंग सूट्स और केस ऑन बिहाफ ऑफ द कंज्यूमर अगेंस्ट एनी मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर. राइट स्टूडेंट्स, कम टू द 6th वन, एजुकेट द कंज्यूमर टू हेल्प देमसेल्व्स. राइट स्टूडेंट्स, ये कंज्यूमर को एजुकेट करते हैं कि वो अपना खुद ध्यान रखें स्टूडेंट्स. नाउ कम टू द अनदर वन, एजुकेटिंग वुमेन रिगार्डिंग कंज्यूमरिज्म. राइट, घर बैठकर आप घी, तेल, मिर्च, मसाले किस तरीके से चेक कर सकते हैं. एंड कीपिंग स्कूल स्टार्ट कंज्यूमर एजुकेशन टू डेवलप अ चिल्ड्रन अ क्रिटिकल सेंस एट एन अर्ली स्टेज. राइट स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स मैनेजमेंट की, इट हैज़ नथिंग टू डू विद मैनेजमेंट इन बिजनेस स्टडीज. बिजनेस स्टडीज के अंदर हम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं. कंज्यूमर प्रोटेक्शन हैज़ नथिंग टू डू विद मैनेजमेंट, बट एट स्कूल लेवल दिस हैज़ बीन स्टार्टेड. ये स्टार्ट कर दिया गया है स्टूडेंट्स स्कूल लेवल पर, जिससे कि स्टूडेंट्स एट एन अर्ली स्टेज अवेयर हो जाएं कि कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर की राइट्स क्या है, कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है. Right, students, I hope these 8 points are very much clear to you. That comes under NGOs. Now come to the last topic of this chapter, that is 3-tier judicial machinery that comes under district, state or national level, students. Right, students, as you know, there are 3 types of consumer court: district court, district commission, right to students, state commission and national commission. Right, students, these are commonly known as District Consumer Dispute Redressal Forum, State Consumer Dispute Redressal Commission and the National Consumer Dispute Redressal Commission. They are referred to as District Forum, State Commission and National Commission. Right, students, so let's discuss one by one about the District Forum. Right, students, District Forum. They are set up in each district by the state government. बेटा पहला पॉइंट इस डिस्ट्रिक्ट फोरम में ये कहता है, दे आर सेटअप बाय द ईच डिस्ट्रिक्ट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. मेरठ है, मेरठ में सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट फोरम बनाया गया है. इसमें बी पॉइंट में इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट. इसमें एक प्रेसिडेंट होता है, 2 मेंबर जिसमें से एक वुमेन का होना बहुत ज़रूरी है. और ये सारे लोग कौन किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? दीज आर द अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न. सो बी पॉइंट, इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट and 2 other members, one of whom should be a woman. They are all appointed by the state government concerned. C point, president कौन होगा students? President must be a working or retired judge of district court. Working or retired judge of district court. Right, students? Now come to D point. A district forum can receive complaints where the value of goods or services and the compensation claimed is up to 20 lakhs. यानी 20 lakhs तक के केस कहाँ पर आते हैं? डिस्ट्रिक्ट फोरम में आते हैं. राइट स्टूडेंट्स, 20 लाख रुपीज तक के केस कहाँ आते हैं? डिस्ट्रिक्ट फोरम में आते हैं. नाउ कम टू ई पॉइंट. ऑन रिसीविंग द कंप्लेंट द डिस्ट्रिक्ट फोरम शैल रेफर द कंप्लेंट टू द अपोजिट पार्टी. ऑन रिसीविंग द कंप्लेंट, अगर इनके पास कोई कंप्लेंट आती है रिटन फॉर्म में, राइट स्टूडेंट, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या करता है? अपोजिट पार्टी कौन है यहाँ पे? अपोजिट पार्टी मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, डीलर, रिटेलर, उनके पास ये पहुंचाते हैं, कंप्लेंट पहुंचाते हैं कि आपके द्वारा आपके अगेंस्ट ये कंप्लेंट आई है, और सेंड्स द सैंपल ऑफ गुड्स फॉर टेस्टिंग इन लेबोरेटरी. ऐसा आई टोल्ड यू अर्लियर कि इनके पास अपनी टेस्टिंग लेबोरेटरी होती है. राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट, एफ पॉइंट. राइट स्टूडेंट्स, आफ्टर द डिसीजन इफ एनी कंज्यूमर इज नॉट सेटिस्फाइड. ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स एफ पॉइंट को. आफ्टर द डिसीजन हैज कम एंड इफ एनी कंज्यूमर इज नॉट सेटिस्फाइड ही कैन अपील against such order to state commission within 30 days. It means कि फैसला आने के बाद, रिजल्ट आने के बाद अगर कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो स्टेट कमीशन में विद इन 30 डेज केस फाइल कर सकता है. आई होप स्टूडेंट दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू. ये आपको क्लियर है स्टूडेंट्स. नाउ कम टू द अनदर वन. द अनदर वन इज स्टेट कमीशन. राइट स्टूडेंट्स, सो लेट्स डिस्कस स्टेट कमीशन.
दे आर सेटअप इन ईच स्टेट बाय द स्टेट गवर्नमेंट। राइट स्टूडेंट्स, ये इससे पहले वी हैव डिस्कस द डिस्ट्रिक्ट कमीशन और डिस्ट्रिक्ट फोरम। दिस इज सपोज टू बी द स्टेट कमीशन। दे आर सेटअप इन ईच स्टेट बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब बी पॉइंट, इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट। इसमें एक प्रेसिडेंट होता है, 2 मेंबर्स होते हैं, वन ऑफ हुम शुड बी अ वुमेन। दे आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। राइट स्टूडेंट्स, सी पॉइंट, इसमें प्रेसिडेंट कौन होगा बेटा? वर्किंग या रिटायर्ड जज हाई कोर्ट का। राइट स्टूडेंट्स, और डी पॉइंट, अ स्टेट कमीशन शुड रिसीव कंप्लेंट्स where the value of goods and services and the compensation claimed is between 20 lakhs and 1 crore। 20 लाख से 1 करोड़ तक के केस कहाँ लड़े जाते हैं स्टूडेंट्स? स्टेट कमीशन में लड़े जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट फोरम में कितने लाख तक के केस थे? 20 लाख तक के केस थे। स्टेट कमीशन में 20 लाख से 1 करोड़ तक के केस लड़े जाते हैं। राइट स्टूडेंट्स, द अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट फोरम कैन ऑल्सो बी फाइल्ड बिफोर द स्टेट कमीशन। राइट स्टूडेंट्स, ई पॉइंट, ऑन रिसीविंग द कंप्लेंट the state commission shall refer the complaint to the opposite party। Same point है students। On receiving the written complaint from any person or any consumer, the state commission can file a complaint, a copy to the opposite party concerned, और goods को वो अपनी टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरी के अंदर भेज देंगे। राइट स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टेट कमीशन की भी अपनी टेस्टिंग लेबोरेटरी होती है। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। नाउ कम टू द एफ पॉइंट। एफ पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू स्टूडेंट्स। एफ पॉइंट में क्या कहा गया है स्टूडेंट्स? इफ अ पर्सन और अ कंज्यूमर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर ऑफ स्टेट कमीशन, ही कैन फाइल अ केस और ही कैन फाइल अपील टू द नेशनल कमीशन विद इन 30 days आफ्टर द रिजल्ट हैज कम। इट मीन्स स्टूडेंट्स कि स्टेट कमीशन से कोई भी कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं है आफ्टर द रिजल्ट हैज कम, तो वो 30 days के अंदर अंदर नेशनल कमीशन में अपील कर सकता है। आई होप स्टूडेंट दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। राइट स्टूडेंट्स, 30 days के अंदर अंदर उसे अपील करनी होगी। बियॉन्ड 30 days वो अपील नहीं कर पाएगा। आई होप स्टेट कमीशन इज वेरी मच क्लियर टू यू। नाउ कम टू द अनदर वन। द अनदर वन इज स्टूडेंट्स नेशनल कमीशन। राइट स्टूडेंट्स, तो नेशनल कमीशन में क्या है? नेशनल कमीशन इज सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। A point। B point, the national commission consists of a president and at least 4 other members, one of whom should be a woman। स्टेट कमीशन में बेटा 1 president, 2 members, one of whom should be a woman। डिस्ट्रिक्ट में 1 president, 2 members, one of whom should be a woman। नेशनल कमीशन में बेटा स्टूडेंट्स 1 president, 4 members, one of whom should be a woman, and all the members are appointed by the central government। नेशनल कमीशन के अंदर स्टूडेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंटमेंट होगा। राइट, और प्रेसिडेंट कौन होगा इसमें? प्रेसिडेंट शुड बी अ वर्किंग और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सी पॉइंट। राइट, डी पॉइंट, अ नेशनल कमीशन शुड रिसीव कंप्लेंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड द कंपनसेशन क्लेम्ड इज मोर देन 1 करोड़। 20 लाख तक के केस स्टूडेंट्स कहाँ थे? डिस्ट्रिक्ट में। 20 लाख से 1 करोड़ तक के केस स्टूडेंट्स कहाँ थे? स्टेट कमीशन में। 1 करोड़ से ऊपर तक के केस कहाँ आएंगे स्टूडेंट्स? नेशनल कमीशन में आएंगे। राइट स्टूडेंट्स, सो अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एनी स्टेट कमीशन कैन ऑल्सो बी फाइल्ड बिफोर द नेशनल कमीशन। राइट स्टूडेंट्स, ऑन रिसीविंग द कंप्लेंट्स द नेशनल कमीशन शैल रेफर द कंप्लेंट्स टू द अपोजिट पार्टी। सेम पॉइंट है स्टूडेंट्स। on receiving the written complaint from any consumer, the national commission can give the copy to the opposite party concerned कि आपके खिलाफ ये कंप्लेंट आई है, and send the sample of goods to retesting in the laboratory। स्टूडेंट्स, आई होप दिस पॉइंट इज वेरी मच क्लियर। द लास्ट पॉइंट इसके अंदर क्या है स्टूडेंट? लास्ट पॉइंट है, एनी पर्सन हु इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ नेशनल कमीशन कैन अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर टू सुप्रीम कोर्ट विद इन 30 days। राइट स्टूडेंट्स, एनी पर्सन जिसका केस नेशनल कमीशन में चल रहा था और वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ है विद द डिसीजन, वो कोई भी कंज्यूमर हो सकता है, तो वो कहाँ पे अपील कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है विद इन 30 days। राइट स्टूडेंट्स, लेकिन स्टूडेंट्स इसमें एक बात का आप लोग बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखेंगे, जो केस डायरेक्ट नेशनल कमीशन में आए हैं सिर्फ वही केस डायरेक्ट जा सकते हैं। जो केस नेशनल कमीशन में नहीं आए हैं वो नहीं जा पाएंगे। राइट स्टूडेंट, यानी कि इट मीन्स कि डिस्ट्रिक्ट फोरम मैक्सिमम अपील कहाँ तक कर सकता है? नेशनल तक। स्टेट कमीशन मैक्सिमम अपील कहाँ तक कर सकता है? नेशनल तक। डिस्ट्रिक्ट फोरम सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जा सकता,
क्योंकि बेटा वहां पर सिर्फ 20 लाख तक के केस है। स्टेट कमीशन कहाँ तक मैक्सिमम अपील कर सकता है? मैक्सिमम अपील कर सकता है नेशनल कमीशन तक, क्योंकि वहां पर 1 करोड़ तक के केस लड़े जाते हैं। ओनली दोज केसेस जो डायरेक्टली नेशनल कमीशन में आए हैं, सिर्फ वही केसेस कहाँ जा सकते हैं स्टूडेंट्स? सीधा और सीधा जा सकते हैं स्टूडेंट्स सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट या स्टेट के नहीं जा सकते। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। नाउ कम टू अनदर पॉइंट स्टूडेंट्स, इसमें लिखा बेटा विद इन व्हाट पीरियड कैन कंप्लेंट बी फाइल्ड? द कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड विद इन 3 months ऑफ परचेज, राइट स्टूडेंट्स। और अगर टेस्टिंग के लिए गुड्स जाते हैं तो उसमें 5 months तक लग सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंप्लेंट मस्ट बी फाइल्ड विद इन 3 months ऑफ परचेज, और एंड इफ सम टेस्टिंग ऑफ गुड्स इज रिक्वायर्ड देन 5 months। ये मार्क्स आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ISI मार्क, ये ISI मार्क देख रहे हैं ऑन ड्यूरेबल गुड्स, प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रिकल गुड्स में एग मार्क है स्टूडेंट्स, एग मार्क और एग्रीकल्चर कॉमोडिटीज। BIS मार्क है स्टूडेंट्स, ये गोल्ड ज्वेलरी हॉल मार्क है। ये वूल मार्क है स्टूडेंट्स, जो 100% वूल पे रखता है। इको मार्क फॉर एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, राइट स्टूडेंट्स। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। नाउ व्हाट आर द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, राइट? कंज्यूमर प्रोटेक्शन refers to protection of consumer from exploitation and unfair trade practices. It also refers to educating consumers about their rights, responsibilities, getting their problem redressed and protecting their interest, right students? तो ये बेटा कॉन्सेप्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, राइट? और बेटा नेक्स्ट इज इट इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ अंडरटेकिंग, बिग एंड स्मॉल, वेदर इन प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर or in cooperative sector, whether a manufacturer or a trader, and whether supplying goods or providing services, right students? For example, protecting the consumer from black marketing, adulteration, hoarding, misleading advertisement, etc. I hope students this is over now. If you find any difficulty, you can ask me anytime students, right? In the next session I am going to discuss the case studies with you students. Those who are having notes, just learn the notes, right students? और इसको मेरी ऑडियो वीडियो को आप अच्छी तरीके से सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे। इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी स्टूडेंट्स। जब तक आपने ये देखा नहीं होगा, मेरी दिस वीडियो को आपने सुना नहीं होगा ढंग से, आप लर्न नहीं कर पाएंगे, आप केस स्टडी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी एनी टाइम, बट डू लिसन टू दिस वीडियो वेरी मच केयरफुली एज आई एम टेकिंग द नोट्स एज अ बेस स्टूडेंट्स, राइट? एंड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछिए स्टूडेंट्स। आई होप दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ, राइट स्टूडेंट्स? ओनली केस स्टडीज आर लेफ्ट एंड दिस चैप्टर कंसिस्ट ऑफ 6 marks. इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू स्टूडेंट्स, बिकॉज स्टूडेंट्स कैन गेट फुल मार्क्स, फुल 6 marks इन दिस चैप्टर। बहुत छोटा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। गो थ्रू दिस चैप्टर, राइट? वॉच दिस माई ऑडियो which I am going to make it for you students, exclusively for you students, and if you find any difficulty you can ask me. Thank you students.